Hey everybody, a very good evening and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज का ये हमारा जो वीडियो है, it is kind of related to history and general studies. As you all are aware, history is a major part of general studies section in almost all the competitive exams. Whether you are preparing for SSC, IBPS, UPSC, bank, PO, or any of the other government exams in which general studies section is there, history is something that has to be a part of it. So if you are aiming for a government job through a competitive test, then it is very important to go for a systematic and thorough preparation for this particular subject, that is history. Though remembering and memorizing all of the facts related to history, it's not easy because there are a lot and lot, like something that just does not end in the subject history. But as they say, if we keep on continuing preparing ourselves for something particular, there will be a time coming super soon in our future when we will be able to crack it. So all the competitive examinations today, they have one essential component, that is general studies. And for all the candidates who are preparing for these examinations, they need to master this particular subject before taking any of the exam in order to crack it. From the level of UPSC civil services to a group C, D clerical exam or any other clerical exam, this paper forms the basis of each and every competitive exam. So general studies is something that includes everything, like facts of almost all the subjects, be it like if you talk about geography, it's there in general studies. If you talk about Indian polity, it is a part of general studies. Be it history, science, sports, current affairs, economics, and any other topic, you just talk about it and it will be a part of general studies. So it becomes all the more very important for us to have the knowledge of it in order to gain that mark in our selection process and gain in order to crack that examination. So today we have brought this video for you guys on the topic इतिहास एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर. So guys, this particular video we'll be taking it in Hindi. और अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं, then this video is completely for you. And just in case if you guys are not comfortable with Hindi and you have a bit of difficulty in understanding the terminologies of Hindi, then we are definitely going to come up with a English version of this video also. So please do stay tuned to our channel and watch the space for more videos coming up super soon. तो आज का वीडियो हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है इतिहास एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर. इसमें हमने सेट 1 और सेट 2 दोनों इंक्लूड करे हैं, और अगले वीडियो में जो हम लेकर आएंगे उसमें इसका हम सेट 3 और सेट 4 भी इंक्लूड करेंगे. एंड ऑल्सो there will be a English version of this particular video as well. So let's get into the video and look out for the questions and answers. तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप से अंग्रेजी की शुरुआत कब की थी? आंसर है 1835 यानी कि 1835 में. अगला है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर है सर सैयद अहमद खान. अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है राजा राम मोहन रॉय. अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है आत्माराम पाडुरंग. अगला है, 19वीं सदी में शुरू किया जाने वाला पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आंसर है ब्रह्म समाज. अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है ज्योतिराबाई फुले ने की थी. अगला है, किसने कहा था
सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है? आंसर महात्मा गांधी। अगला है, कांग्रेस के नेताओं में से किसे महान वृद्ध कहा जाता था? आंसर है दादा भाई नावरेजी को। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है दादा भाई नारोजी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन तक संपत्ति के अपवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है दादा भाई नारोजी ने। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर है भगत सिंह ने। अगला है, राष्ट्रीय संघर्ष के समय प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला है, गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा है? आंसर भगवत गीता को। अगला है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है लोकमान्य तिलक। अगला है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनको लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अरविंद घोष। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? आंसर महात्मा गांधी जी। अगला है, ब्रिटिश नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? आंसर है दीन बंधु मित्रा ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया है? आंसर है संत विद्रोह का। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? आंसर है लाला हरदयाल मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? आंसर है नाना साहिब जी ने। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हाथ से बने खादी के कपड़े पहनकर 1877 में शाही दरबार में कौन गया? आंसर है जीवी जोशी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहले वायसराय थे? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। राज्य हड़ूप नीति के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ था? आंसर है लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, भारत किस वायसराय के दौरान स्वतंत्र हुआ? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के दौरान। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी।
भारतीय विश्वविद्यालय स्कूल अधिनियम किसने पारित किया था? आंसर, लॉर्ड लिटन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? आंसर, नियामक अधिनियम 1773 में। आंसर, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किसने शुरू की? आंसर, 1909 में की। और 1909 का मिंटो मार्ले सुधार, इसने इन क्षेत्रों में व्यवस्था की, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में व्यवस्था शुरू की। लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित किया गया और पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए मांडले भेजा गया? आंसर है 1907 में। भारत में स्थानीय स्वायत्तता के प्रणेता कौन थे? आंसर, लॉर्ड रिपन। 1853 में भारत में पहली बार रेल यात्रा किस स्टेशन से शुरू हुई थी? आंसर, बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना की गई? आंसर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भारत को अधिकारिता का दर्जा किस तिथि को मिला? आंसर है 15 अगस्त 1947। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सदस्य थे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है, फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है 72। तो गाइज, ये थे कुछ इतिहास के सवाल जिसका हमने सेट 1 आपको अभी शेयर करा। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट इतिहास एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर सेट 2 के बारे में। इसमें भी हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, बस उसका जो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस है बस वो थोड़ा अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर का सेट 2। पहला सवाल, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? आंसर है, हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला है, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,660 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बीच की दूरी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बीच की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर की है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर है, लोहा। तो जो सिंधु घाटी के निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो लोग वहां के निवासी थे, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तब तक के टाइम तक उनको लोहे धातु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आंसर है, मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो उस युग में जो धातु यूज किया जाता था वो कांस्य था।
इसीलिए उसको कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण टोटल 18 प्रकार के होते हैं और पुराणों की संख्या इसीलिए 18 है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना 14वीं शताब्दी ईसवी पूर्व हुई थी। चौथी, मगध की राजधानी कहां थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजात शत्रु ने। कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? उत्तर है अशोक ने। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र। जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? आंसर है उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तक्षशिला कहां स्थित है? आंसर है पाकिस्तान में। फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? आंसर है समुद्रगुप्त के शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज कौन था? आंसर राजदूत। धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक का नाम था अशोक। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म यानी कि भीष्म पितामह को कहा जाता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला था? तो टोटल 18 दिनों तक महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र के मैदान पर चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला सवाल है महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना महर्षि महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महर्षि वेद व्यास। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया गया है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुरुवंश की राजधानी क्या थी? कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? गीता में टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं। कर्ण किसका पुत्र था? उत्तर है कुंती का। महाभारत में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख मिलता है? उनका नाम बताएं। महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिलता है और उनका नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है ब्रह्म्य विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और अंतिम यानी कि 8वां विवाह है पिशाच विवाह। वीर शैव जिसे हम लिंगायत आंदोलन का नाम से भी जानते हैं, उसका जनक कौन है? उत्तर है बास बन्ना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? आंसर है 84,000। हीन यानी पुस्तक किस भाषा में है? आंसर है पाली।
महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आंसर है कपिलवस्तु में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? आंसर है महावीर स्वामी जी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किस धर्म से? त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान किस धर्म के से संबंधित हैं? आंसर है बौद्ध धर्म से। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? आंसर है ब्रह्मचर्य सिद्धांत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? उत्तर है ऋषभदेव। सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। भगवान बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? उत्तर है अकबर ने। तो जो अकबर थे वो तंबाकू का सेवन किया करते थे। तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? उत्तर है जहांगीर ने। Okay guys, so that's it for today's video, and those were some of the very important questions and answers related to history. So as I said it earlier, आपको general studies में अगर आपको excel करना है then you need to know about history also, और उसी चीज के लिए आपकी हिस्ट्री के नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हमने दो तरह के सेट प्रोवाइड कराए हैं, एक हड़प्पा से रिलेटेड है और एक अपना जनरल जो हिस्टोरिक क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड है। आप प्लीज वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और जो भी लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनकी भी नॉलेज उस चीज को लेकर बढ़े, और अगर वो किसी भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, प्लीज उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रीच आउट टू अस, और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। एंड यस, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी प्रिपरेशन में हर एक वीडियो और हमारा यही मोटो रहता है दैट आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसमें हम डेली आपको मदद दें। तो प्लीज हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पे और भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए प्लीज डू रीच आउट टू ऑल आवर अदर वीडियोस ऑल्सो। प्लीज देखें, शेयर करें एंड खूब सारा प्यार देते रहें जिस तरह से आप लोग अभी तक दे रहे हैं, बिकॉज आप ही के सपोर्ट से हम हमारे चैनल को और आगे तक लेके जाएंगे। एंड यस डेफिनेटली, एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से लेके या किसी भी वीडियो से लेके कोई क्वेरी है, या आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरी। So that's it. Thank you so much for watching. Let's keep learning, keep sharing, and keep supporting each other.